there's a misconception between how people think कि mimicry भी होनी चाहिए और वो सब होना चाहिए नहीं तो मतलब ही दोस्त नहीं बनाने तुम्हें कि यार इससे काम मिल सकता है नहीं in the background और इधर हर जगह there are actors sitting तो just so that it doesn't sound एकदम silent कि कोई कुछ बात ही नहीं कर रहा है all that is built from scratch like every OTT is trying to get their content in as many languages as they can right. Hello, all, and welcome to this new episode of Rising Through the Ranks podcast. In this episode, we have Mr. Anshul, who is a voice actor who has lent his voice to multiple movies and shows, including Oppenheimer and Farzi, to name a few. So, in this episode, he talked to us about the voice acting career path, how to make it big in the theatre or entertainment industry, what happens in these industries, and also he shared interesting tales about this industry. So, stay tuned and watch the full episode. And do let us know your opinions on the comment section below. So, hi Anshul, we'll start Hi. with the podcast with this episode. Yeah. We would first like to understand briefly what your journey has been like, because this is very unconventional. It could help if you started from school days and how you slowly got into voice acting as a career now and how that has worked out for you. Okay, so what happened in the beginning? It was I completed my 12th and I didn't want to go to college because I just didn't want to for some reason. Like 11th, 12th ke aaspaas hi, I started getting very, very interested in filmmaking and everything, in every aspect about it. And I was very interested in the post-production part of it. तो उस टाइम पे आई थॉट कि मैं एनिमेशन सीखता हूँ बिकॉज आई रियली लाइक हाउ VFX वर्कड एंड हाउ इट एनहांस्ड द फिल्म मेकिंग एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग but again in animation and everything you need so much of the initial investment and everything ऐसा नहीं था कि parents won't provide or anything but I didn't want to be a burden on them so Initial investment, you mean education wise or like software वगैरह खरीदना? you need a good system you need a you need to first find a good college that teaches you the specific thing the specific animation thing I didn't want to study the whole coding nahi seekhni hai mujhe animation ke liye and all that so it was like that I was good in coding I was good in I had Java in 12th I like did really good in that but I was again since I was inclined towards filmmaking I didn't want to go that way so yahi hua I came to Mumbai and I started giving acting auditions and everything so during that time बहुत सारे WhatsApp groups होते थे जहाँ पे audition updates आते थे So what I did was I saw an update कि they need a young male voice for something, some project or something. I don't even remember the message now. But कोई छोटा ही studio था. I just went there randomly कि भाई चलो देखते हैं क्या होता है. I didn't know anything about dubbing. I didn't know it existed only because till that point I only knew कि भाई Peter Cullen ने Optimus Prime को dub किया है. And I was fascinated about how he did it. मैं उसके behind the scenes देखता था तो माइकल बे खड़ा है पीछे and he's doing that and I am Optimus Prime ये कर रहा है वो बैठ के है ना and I used to be fascinated about it और फिर एनिमेशन वगैरह तो हमने सब नहीं देखा है बचपन से तो it was very it always poked me in some way तो वही हुआ I went to that audition and unprepared I went there the studio owner asked me कि आपने पहले dubbing की I was like नहीं तो she was like आपने सीखी है डबिंग I was like नहीं तो she was like आप क्या सोच के आए यहाँ पे मुझे नहीं पता मैं क्या सोच के आया हूँ यहाँ पे let's just please take my sample and let me go तो उन्होंने यही किया मैंने लिटरली वहाँ पे एक न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल उन्हें पढ़ के सुना दिया इंग्लिश में और एक हिंदी में that was it after a month or two I get a call from them कि भाई आपकी वॉइस बहुत अच्छी लगी हमें how you speak has so attracted you spoke in your natural way yeah so yeah I'll come to that later that how there's a misconception between how people think mimicry bhi honi chahiye aur wo sab hona chahiye no not at all okay so I got a call from that studio and I उस टाइम पे एक DD का शो चल रहा था DD नेशनल का एक शो चल रहा था and they wanted to get it dubbed in English तो for that project I got contacted कि भाई तुम्हारी इंग्लिश अच्छी लग रही है तो एक काम करो तुम प्रोजेक्ट भी सुपरवाइज कर दो और डब भी कर दो साथ में कैरेक्टर सो दैट इज हाउ आई स्टार्टेड और फिर वहां से always till now I've completed 5 years almost 6 years now till now friendship और contacts की वजह से ही मैं आगे बढ़ पाया हूँ that happens I think in every field but especially in the artistic field it is very important to make friends along the way
बिकॉज एंड जेन्युइन फ्रेंड्स, नॉट जस्ट फॉर मतलबी दोस्त नहीं बनाने तुम्हें कि यार इससे काम मिल सकता है, नहीं. If your friendship is genuine, if you know where you stand, it is very important. So I discovered how my voice was. मुझे पहले लगता था अरे बेस वाली वॉइस होनी चाहिए, होना चाहिए. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. Okay. बिल्कुल नहीं है. So then I discovered how it worked, and slowly I started getting bigger characters. Got it. I think one thing we can cover right now only कि ये voice acting का like how should we think about voice acting? क्या है ये feat? So मैं भी पहले सोचता था कि यार ऐसे आवाज निकालते आनी चाहिए किसी एक्टर की. जैसे हाँ. हमने देखा था कि बचपन में जिम कैरी की डबिंग जब हो रही है तो थोड़ी कॉमिक वे में हो रही है, बट इंटेंशन बिहाइंड दैट वुड बी कि जो इंग्लिश में नहीं देख पा रहा है ना, वो हिंदी में देख लेगा. तो उसके लिए थोड़ा तो तुम्हें उसे लोकलाइज करना पड़ेगा. दैट इज कॉल्ड लोकलाइजेशन, द होल प्रोसेस ऑफ डबिंग एंड एवरीथिंग, द ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन एवरीथिंग. तो लोकलाइज तो थोड़ा करना पड़ेगा क्योंकि उसको वहां के रेफरेंस समझ में आने नहीं वाले. राइट. तो उसके लिए ही आपने एवेंजर्स में देखा होगा कि वो हरियाणवी एक्सेंट क्यों बोल रहा है, और ये दैट इज जस्ट बिकॉज इट नीड्स टू बी लोकलाइज्ड, क्योंकि वो तो स्कैंडिनेवियन सम अदर एक्सेंट ही स्पीकिंग इन, राइट. Yeah. अब इंडिया के लिए कुछ तो करना पड़ेगा. हिंदी में हमारे पास कौन सा एक्सेंट्स है, तो हमारे पास हरियाणवी है और गुजराती है, मराठी है ना. तो अब अपने को थोड़ा मसाला भी चाहिए होता है इंडियन exactly that's why the jokes also, that's why Dopinder was Gujarati in Deadpool, right? Because he could be relatable, right? Again, so voice acting would be exactly like how acting is, but again you are just trying to portray that particular piece of media to a wider audience. I hope I'm able to. So हाँ, and again मिमिक्री आनी जरूरी नहीं है, बिल्कुल नहीं है. दैट्स अ बिगेस्ट मिसकंसेप्शन. मुझे नहीं आती है बिल्कुल. आई कैन हार्डली डू सनी देओल समटाइम्स, बट इट इज नॉट नेसेसरी एट ऑल. बट सम पीपल आर वेरी वेरी गिफ्टेड एंड टैलेंटेड, बिकॉज मिमिक्री तो अलग ही एक स्किल हो गया. यू कॉपी द मैनरिज्म्स इन everything. Like you see, exactly like you see Dr. Sanket Bhosle and Sunil Grover and all that. वो लोग बहुत अच्छे से मिमिक्री कर लेते हैं, बट अगेन जरूरी नहीं है वॉइस एक्टर बनने के लिए. यू जस्ट नीड टू नो हाउ यू साउंड ऑन द. आपको लाइक एक्सेंट्स मास्टर करने पड़ते हैं जो नेशनल हमारे 3-4 हरियाणवी हो गया, जैसे यू मेंशन गुजराती. डू यू हैव टू मास्टर दोस और No, again if it's the requirement of the character, the studios usually go for that, उस particular accent जो पहले से आता हो, जिसकी मतलब जो गुजराती शुरू से बोल रहा है ना, only that actor has dubbed for Deadpool में दोपिंदर, because he knew, right? क्योंकि वो अब एक्सेंट मास्टर करने जाएगा तो उसे काफी टाइम लग जाएगा. जैसे if I start learning, I won't catch एकदम tiny वो चीजें. Like I've dubbed in like there was this advertise I did for I can't say the name, but again for उनके लिए मैंने 9 लैंग्वेजेस में डब किया था. मुझे सिर्फ 2 लैंग्वेजेस आती हैं यार. तो how I did that was the company helped me a lot. वो अपने ही आपस में locals जितने भी थे, one was Bengali, one was Kannada, मलयालम एंड ऑल दैट. तो उन्होंने खुद वॉइस नोट्स भेजे मुझे, मैं उन्हें सुनता था. मैं 15-20 बार सुन रहा हूँ जस्ट टू गेट दोज, एकदम जब तक सिमिलर साउंड नहीं करता है. सो आई वुड पुट दैट इन माय डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन, एंड फिर मैं उन्हें सिंक करता था बैठ के कि एकदम सेम साउंड कर रहा है कि नहीं. सो ऑल दोज थिंग्स आर वो तो ठीक है, अब तुम्हें टेक्निकल थोड़ी चीजें आती हैं तो यू कैन डू दैट, बट the bare necessity to being a voice actor is just being able to act in front of the mic, of course. Got it. And becoming a voice actor, are there any courses or certifications that are available in India? There are. You can call them diplomas. 2 महीने के वर्कशॉप्स तो बहुत होते रहते हैं. वीकेंड वर्कशॉप्स होते हैं. So I think to discover whether you can do it, you need a छोटा workshop only. Okay. And like you said कि you went to an audition without prior experience, तो Right. आपने उस समय कर लिया था ये वर्कशॉप, या आप उस समय एज अ बिल्कुल फ्रेशर ही गए? नहीं, मैं क्लूलेस गया था. मैं वहां पे, मुझे पता ही नहीं था क्या होता है, डबिंग कैसे करते हैं. So yeah, you don't need any experience or anything. वर्कशॉप में कोई भी जा सकता है, and they'll discover whether they are able to do it or not, and whether they are able to take direction from the director and everything.
Understood. And these workshops are available in Mumbai only or everywhere? They are Yeah. available in Delhi, I think some in Bhopal. मुंबई में मेजरली ऑफ कोर्स, दिल्ली में भी काफ़ी है, डबिंग इंडस्ट्री दिल्ली में भी काफ़ी है, बट आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट. आई हैव हर्ड इट फ्रॉम अदर कॉलीग्स जो दिल्ली से हैं, Understood. बट या मेजरली इन दिल्ली एंड मुंबई. So, and for like anyone considering any career these days, help. This is very helpful कि एक दिन कैसा दिखता है आपका as a day, like how is it? What do you do exactly in a day? Or is it very concentrated work कि 2 महीने के लिए बहुत concentrate हो गया बाकी दिन चले? Like इट how इज is it? लाइक इट इज डेफिनेटली लाइक दैट. सो अगर कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, जैसे अभी मैं 3 प्रोजेक्ट्स एक साथ कर रहा हूँ, Wow. तो क्या होता है कि अभी मेरा कैरेक्टर तो मैं कर लूंगा, बट बाकी कैरेक्टर्स होने के लिए आई हैव टू वेट, एंड दे हैव टू सबमिट इट एपिसोडिकली. एक एपिसोड पूरा डब होगा, वो सबमिट होगा, फिर वहां से उसका क्यूसी आएगा, वो सब होगा. सो ड्यूरिंग दैट टाइम आई हैव टू वेट. Hmm. अगर मैंने हफ्ते में 3 दिन डब करके मेरा एपिसोड खत्म कर दिया, तो अब बाकी के 4 दिन आई हैव टू वेट. आई हैव टू लाइक, अगर मेरे पास दूसरा प्रोजेक्ट है तो ऑफ कोर्स आई विल बी बिजी. ऐसा कभी कभी होता है कि दिन भर में यू हैव टू, जैसे 3 घंटा मैंने सुबह दे दिया, फिर ऐसे बैक टू बैक दिन भर में डब्स होते हैं. Hmm. So that all depends on how studios are contacting you, how many projects you have right now going on. So yeah, it gets quite free sometimes, it gets quite busy sometimes. And this makes me also think कि अब like this daily dubbing का brought this into my mind कि voice को maintain करना भी मुश्किल होता होगा ना, like वो बहुत बहुत voice, मुश्किल how होता do you do that कि health हाँ, कोई जैसे routine? जैसे हमने मतलब मैंने बहुत बार सुना है या पढ़ा है कि लता मंगेशकर एंड द बिगेस्ट सिंगर्स हैव हैड टू प्रोटेक्ट देयर वॉइसेस फॉर देयर होल लाइफ की Hmm. आइसक्रीम है. नहीं खाया या कुछ. या अभी आप लोगों के साथ भी वैसा होता है Right. स्ट्रिक्ट बिल्कुल. रूटीन? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है. तो लता मंगेशकर की आपने बात की, तो आई वुड लाइक टू टेल यू, शी यूज्ड टू ईट अ स्पेशल काइंड ऑफ मिर्ची, आई हैव हर्ड. Okay, wow. I don't know why. Maybe that cleared her, the vocal passage or something. But again, people do random things for their voice. Abhi kya ho raha hai na? I'll talk about right now. The AQI in Mumbai is very bad, very very bad. Hmm. It's like 330, 340 something. ऐसा चल रहा है, बहुत ही बेकार है. तो बाहर सांस लेना भी is bad for your throat. अब Oh, ऐसे पॉइंट पे यू कम्यूट, डेली टू द स्टूडियो, उस उतने में ही तुम्हारी वॉइस खराब हो जाएगी. अभी सारे वॉइस आर्टिस्ट, सारे इंजीनियर्स, जो भी जितने भी लोग हैं, सब सब ऐसा कर रहे हैं यार. okay. So during that time, it is very important to like have a sip of hot water every once in a while, and then lozenge है मुंह में, वो सब चाहिए है. Okay. अदरवाइज इट गेट्स रियली टफ. ठंड के टाइम पे आइसक्रीम तो आपको थोड़ा संभल के ही खानी है भाई, दिन के टाइम में खा लो, कोई बात नहीं. वो भी ऐसा है कि अगर खराश है तो मत खाओ प्लीज. Hmm. एंड एट द सेम टाइम देयर आर सर्टन, अभी कोई एलर्जिक है अगर किसी चीज के लिए, अवॉइड ऑल दैट. क्योंकि अगर कल डबिंग है और आज मैंने बोला स्टूडियो के कि यार मैं कल नहीं आ पाऊंगा, तो थोड़ा तो उनके लिए भी अब मिसमैनेज्ड वाला होता है ना, कि तुम्हारी वजह से अब मुझे पूरा शेड्यूल वापस देखना पड़ेगा और वो सब. तो that happens. And of course abhi some artists sometimes don't dub for a week, क्योंकि गला बैठ गया तो अब क्या करें ना, it takes time. हाँ. 4-5 दिन तो इजीली लगता है ये गला बैठने में. तो that is a very scary thing for any voice artist. Uh, we had a question ki how did you crack your first project, but you already told us when you were introducing yourself and talking about your journey. But Right. what the I think that is maybe more of a one-off case कि आप गए और आप एक बारी में पसंद आ गए, क्योंकि किसी भी करियर में ऐसा होता है कि थोड़ा 3-4 बारी एटलीस्ट आपको हाथ पैर मारना पड़ता है, तब जाके यू बिल्कुल. गेट योर फर्स्ट ब्रेक. तो बिल्कुल. टिपिकली इन द वॉइस एक्टिंग इंडस्ट्री कैसे किसी को फर्स्ट ब्रेक मिलता है? ऑडिशंस के थ्रू ही? ऑडिशंस के थ्रू ही मिलता है डेफिनेटली. अगर देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जैसे हमारे दोस्त बोल रहे हैं यार तेरी वॉइस बहुत अच्छी लग रही है, यू शुड ट्राई इन सिंगिंग और डबिंग और व्हाटएवर. तो बिकॉज ऑफ दैट सम पीपल आर लाइक कि अरे मैं डबिंग कर लूंगा मुझे लगता है. बट व्हेन दे स्टेप इन फ्रंट ऑफ द माइक, तो उन्हें पता चलता है कि नहीं यार, इट इज वेरी टेक्निकल. सिर्फ वॉइस अच्छी होने से नहीं हो जाता है, वॉइस में बेस होने से नहीं हो जाता है. मे बी यू विल बी एबल टू डू वॉइस ओवर्स बेटर. तुम एड्स को वॉइसेस दे सकते हो, और कॉर्पोरेट एवीज के लिए वॉइसेस दे सकते हो मे बी. बट डबिंग एग्जैक्टली इज लाइक आई सेड, लाइक इट्स अ परफॉर्मिंग आर्ट. एंड And what is good work in dubbing? Like, what does it mean? Technicalities क्या होती हैं? And maybe you help us with an example only कि किसी मूवी का आपने पूरा डबिंग किया. How did you make it a good piece of work? अच्छा, ओके. सो अगेन, जैसे
फर्स्ट ऑफ ऑल द डायरेक्टर प्लेज अ वेरी मेजर रोल इन ऑल दिस. तो वो आपको एक्सप्लेन करेगा कि भाई स्टोरी में ये चल रहा है, आपके कैरेक्टर के साथ अभी ये हुआ है. सो again, as an actor goes through that process of understanding the script and everything, what's going on in the story. So I think same way hum bhi, we try to understand what is going on in the story because we want to convey to our audience, our local audience. So that happens, and that has to happen very quickly. Like you have 15 minutes to understand कि इस scene में क्या चल रहा है और ये script है. तो you have to, you know, get in that zone. अगर कोई बहुत ही intense action scene चल रहा है तो you have to get worked up. You have to, you know, like I uh, I don't know if you have seen that video of Hugh Jackman. He's dubbing for Wolverine and he's running through the jungle and he's just panting and he's just screaming. तो वो सब कुछ हमें भी करना पड़ता है. ऑफ कोर्स लाइक आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड डबिंग फॉर एनिमेज में Yeah, देयर ओवर द टॉप क्रेजी चीखना चिल्लाना, राइट? I've actually seen a video where a Japanese somebody was dubbing and they were crying actually to get Oh it yeah, right, yeah, completely crying. that Uh, happens. That uh, happens. yeah, Absolutely that happens क्योंकि सीन में इतने engross हो जाते हो ना तुम. correct. And since you have to now perform and be, you have to feel that emotion what the actor is going through and everything. So of course you'll cry, you'll laugh randomly, you'll, it's again, it's a very different experience dubbing a movie क्योंकि आप इतने attach हो जाते हो उस character से. You have to, and there is a responsibility also कि you have to do justice to the actor that has worked so hard in that, right? कि वो तो actually physically भी मर रहा है बेचारा action scene करते समय. So I can at least put that effort to make it sound real, at least in my language, in my that audio track on Netflix or whatever platform, not Netflix, yeah. Uh, then we scoured your Instagram and we found out कि you worked recently on Oppenheimer. Oh yeah, yeah. We can take names, right? अब तो आप Instagram पे पूरा public है. अब तो ले सकते हो, मे बी अभी हाँ रिलीज हो चुका है तो हाँ yeah. तो Oppenheimer, Farzi, Night Agent, you worked on these big projects. Yeah. So what is the process, or what is the how do you get to work on these big projects? How do you approach these directors, or how do you approach these producers when you want to work on big projects? Okay, so like every freelancer ever, जहाँ पे भी आपने एक प्रोजेक्ट किया है तो chances are कि those people will call you again because of how you have worked in the previous project. तो इन ऑल दीज प्रोजेक्ट्स यही हुआ है मेरे साथ कि इवन इवन ड्यूरिंग ओपेनहाइमर तो मैं ट्रैवल कर रहा था उस टाइम पे, आई वाजंट अवेलेबल एंड ऑल दैट. तो द डायरेक्टर वेटेड फॉर मी और उन्होंने मुझे बोला कि यार एक कैरेक्टर आया ओपेनहाइमर में, यू हैव टू. उन्होंने तब नाम नहीं लिया था ऑफ कोर्स बिकॉज दे हैव टू बी वेरी सीक्रेटिव अबाउट इट. Correct. उनका वर्किंग टाइटल भी और कुछ रहता है और इन द स्टूडियो दे डोंट राइट इट ऑन द स्क्रिप्ट्स की कोई फोटो खींच के ना अपलोड कर दे, है ना. सो दैट हैपेंस एंड सो द डायरेक्टर वेटेड फॉर मी. ही वाज लाइक कि एक ऑडिशन दे दे आके, वील सी व्हाट हैपेंस. तो मैं गया, आई गेव दैट ऑडिशन एंड even though it wasn't a big character in Oppenheimer, but again to be associated with such a big movie, I worship Nolan. I have been worshipping Nolan since years. तो just to get that opportunity and वही है कि स्टूडियो अगर मुझे नहीं जानता होता तो maybe they wouldn't call me for that character audition. So that is very important again कि आप जब भी स्टूडियो जा रहे हैं, you socialize a bit with people, not fake socializing, because again it shows. People Yeah, can it shows. sense it. फेक होते हैं तो समझ आ जाता है. वही genuinely अगर आप genuinely interest दिखा रहे हैं प्रोजेक्ट में in the studio and how they working, you're there to help them out, right? As an I artist, think you it also comes back to you were also very like passionate about this field, absolutely right? absolutely That yeah. वो genuine interaction तभी होता है जब तुम genuinely curious हो. बिल्कुल बिल्कुल. मैं तो आज अगर बोलूँ कि मेरे को वॉइस एक्टिंग करनी है तो मैं नेटवर्क नहीं बना पाऊंगा क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं है उतना. बिल्कुल बिल्कुल हाँ, that happens definitely. तो इवन एनिमे और इन सब चीजों में, अब जैसे हम लोग माय हीरो एकेडेमिया डब कर रहे थे तो हाँ, आई मेरे दोस्तों ने वो देख रखा है पहले से, बचपन में ही देख रखा है. okay. तो मुझे थोड़ा थोड़ा तो आइडिया था स्टोरी के बारे में. सो व्हाइल डबिंग, ओ माय गॉड, इट फेल्ट सो गुड टू डब दोस कैरेक्टर्स क्योंकि अब तक वही है कि जापानीज में देखा, जापानीज और इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ Which देखा. character did you dub, by the way? I watched My Hero Academia, so So I did Kurogiri, I did okay. उनका that purple smoke वाला monster है ना, हाँ, हाँ. villain, and I also did the principal Nezu.
वो जो Okay. छोटा Okay. चूहा रहता है, oh my हाँ, god, such lovely characters. I dubbed I think 5 characters in it, but वो ऐसे हाँ, बहुत spaced out रहते हैं, तो I had to modulate for every character. Like correct. Kurogiri had a very very deep voice and ऐसे बात करता है, और नेजू talks like जैसे ही हम अभी अभी सुन के आया है वो, है ना? So it's very satisfying to modulate, and when you get to portray your range, I think. And that okay, so another tough thing as a voice actor is आपकी range का character मिलना. Hmm. मतलब होता है ना कि अब जैसे I'll not name the studio of course, but उनके साथ में मैंने बहुत बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए अब तक, Hmm. बट आई फील कि दे हैव टाइपकास्टेड मी इन अ सर्टेन कैटेगरी कि Hmm. यार थोड़ा सा थोड़ी पतली आवाज है, तो ऐसे वाले यंग वाले कैरेक्टर्स देते हैं इसको. सो Hmm. उनके साथ में हमेशा यही रहा है कि वो मुझे पतली आवाज वाले ही कैरेक्टर्स देते आए, यंग कैरेक्टर्स ही देते आए, टीनेज कैरेक्टर्स देते हैं. इन दिस अदर स्टूडियो, इन्हें पता है कि भाई ये बेस वाली वॉइस भी बहुत अच्छी कर लेता है, परफॉर्म कर लेता है, तो Hmm. इन्होंने मुझे सिर्फ बेस वाली वॉइसेस ही दी हैं अब तक. सो Wow. इन स्टूडियोज में आई विश दे न्यू कि आई कैन ऑल्सो मॉड्यूलेट, राइट? तो मैं तुम्हारे लिए पतली भी कर सकता हूँ, मोटी भी कर सकता हूँ, गाइस कम ऑन. तो for a voice actor to portray their range in front of these studios, to make them realize कि भाई we are capable, that is a tough part. Yeah. And especially in voice acting, so one we have at least I know that became famous was this Nobita ka voice, Right. and people who are able to really dub it well. Those voice actors have also become very famous. Oh yeah. Especially in the anime world, this is there. I don't know of any from Hollywood, etc. I haven't really gone that deep into Right, right. voice acting in Hollywood. But what are some iconic like voice actors for you? Who do you look up to when you say ki, uh, Okay. Wow. uh, Controversial. Okay. और like performances that you feel कि ये interesting है. अरे यार देखो, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग. आई हैव ऑलवेज फॉलोड द करियर ऑफ मिस्टर शक्ति सिंह. Okay. शक्ति सिंह ने इन द होल मार्वल यूनिवर्स ही हैज वॉइस्ड फॉर निक फ्यूरी. Okay. Brilliant voice. Oh my god. Great Hmm. voice, great performer. He's also an actor and Hmm. amazing. Gazab ke. Again, I would like to name all of them, but again, I would just pick jo abhi top of my head. Another would be Rajesh Khattar, if you know. He's the voice for Tony Stark. Okay. So Rajesh Khattar is Ishan Khattar's dad. Okay. Yes. शायद So शायद कपूर वो साहब भी का ही. definitely. Then the older voice of Doraemon is Sonal Kaushal. She's also very famous. Uska YouTube channel hai khud ka, and she vlogs and everything. So again, very very famous. These people are. Viraj Adhav is there. He is the official voice of MS Dhoni in all the ads and everything. Wow. Okay. Yeah, it's never Dhoni. It's always Viraj. So Okay. yeah, मुझे तो अभी पता भी नहीं लगा. exactly right. Wow. Then there is Sanket Mhatre, that has been dubbing for Allu Arjun and many big characters. Come on, they have been dubbing for like 10 years 15 years. मैं तो तब एग्जिस्ट ही नहीं करता था इस इंडस्ट्री में. मैं तो 5 साल पहले ही आया. Hmm. My first project, big project, was House of Cards, I think. Hmm. Okay, Yeah, that's really yeah. big. पहला Netflix का काफी project. entire series और काफी लंबी है वो तो like so हाँ, many. तो 6 सीजन थे उसके. तो आई थिंक मैं सीजन 2 के आसपास कहीं पे आया हूँ. तो उस टाइम पे क्या होता था, अभी अगेन आई विल टेल यू द स्टेप्स. तो पहला तो क्या होता था, द फर्स्ट स्टूडियो दैट आई टोल्ड यू अबाउट कि मैं ऐसे रैंडमली गया था, वहां पे दे यूज्ड टू डू एडीआर, दैट इज ऑटोमेटेड डायलॉग रिप्लेसमेंट. क्या होता है कि अगर जैसे कोई शो ले लिया, चलो सावधान इंडिया ले लिया, उस टाइम पे वही बहुत चलता था, सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल. तो अभी वो लोग तो ऑन लोकेशन साउंड ही यूज करते थे, जो ऑन सेट साउंड ही होता है. अभी पीछे से अगर कोई ट्रक चला गया, ऊपर से प्लेन चला गया, किसी ने जोर से छींक दिया या व्हाटएवर, तो एक्टर का डायलॉग गेट्स इंटरप्टेड. और अगर वो क्लियर सुनाई नहीं दे पा रहा है, सो फॉर दैट वन लाइन दे विल कॉल अ वॉइस एक्टर टू मैच द वॉइस ऑफ दैट एक्टर एंड रिप्लेस दैट वन लाइन. तो मैं ऐसे एक एक दो लाइंस करने के लिए पहले जाता था, एंड दे यूज्ड टू पे मी लाइक ओ माय गॉड, लाइक 2 लाइन के लिए मुझे 600 रुपए मिल रहे हैं एंड ऑल दैट यूज्ड टू हैपन. दैट इज द फर्स्ट एकदम इनिशियल स्टेज की बात कर रहा हूँ मैं. आफ्टर दैट, आफ्टर आई मेड फ्रेंड्स विद दिस इंजीनियर फ्रेंड ऑफ माइन, वो ऑडियो इंजीनियर था उसी स्टूडियो में.
he joined a bigger studio and that was the biggest studio in India right now. है ना, वहाँ पे सब होता है, नेटफ्लिक्स और डिज्नी और पता नहीं क्या क्या, है ना, वो होता है. तो ही वाज लाइक कि अरे ब्रो, ये एक प्रोजेक्ट चल रहा है, तो ये डायरेक्टर को मैं नंबर देता हूँ, तो मैसेज कर दे इनको. मैं ठीक है, मैसेज किया. एंड जस्ट नॉट जस्ट अ मैसेज, व्हाट आई डिड वाज आई वेंट टू यूट्यूब. मैंने हाउस ऑफ कार्ड्स का हिंदी ट्रेलर निकाला उसमें से, एंड आई डब्ड द होल ट्रेलर इन माय वॉइस. एंड आई वाज लाइक कि अब मैं ये भेजता हूँ. मैंने सिर्फ अपना फोन लिया, आई रिकॉर्डेड द होल थिंग इन वन गो. ऑफ कोर्स मल्टीपल टेक्स लगे, बट मैंने वो भेज दिया. आई थॉट कि अभी कुछ इनको लगेगा, इंप्रेसिव लगेगा, कुछ तारीफ वारीफ होगी. कुछ नहीं हुआ ऐसा. तो व्हाट द रिप्लाई आई गॉट वाज कि ओके, कल आप आ जाइए, कल डब के लिए आ जाइए. मैं ठीक है, ओके. आई वाज वेरी एक्साइटेड कि यार क्या बात है, हाउस ऑफ कार्ड्स के लिए मैंने भेजा और क्या बात है, ओके, हो भी गया. नाउ आई वेंट द अदर डे, नेक्स्ट डे आई वेंट. सुबह 8 बजे की शिफ्ट रहती थी, है ना. तो उस टाइम पे क्या होता था, नाउ दिस इज कॉल्ड एम्बियंस डबिंग. अब जैसे इमेजिन देयर इज अ कोर्ट रूम सीन, है ना, और या फिर कोर्ट रूम के बाहर का सीन है, पुलिस स्टेशन का सीन है, कैफे का सीन है. तो हर जगह पे देयर आर मल्टीपल पीपल सिटिंग एवरीवेयर, नॉट जस्ट द एक्टर्स. प्रोटैगनिस्ट पे तो कैमरा रहेगा, बट इन द बैकग्राउंड और इधर हर जगह देयर आर एक्टर्स सिटिंग. तो जस्ट सो दैट इट डजंट साउंड एकदम साइलेंट कि कोई कुछ बात ही नहीं कर रहा है, ऑल दैट इज बिल्ट फ्रॉम स्क्रैच इन द डबिंग. तो अगर वहां पे एम्बियंस चल रहा है, वो लोग आपस में बातें कर रहे हैं, ऑफ कोर्स उनकी लैंग्वेज में ही बात कर रहे हैं, तो अब हमें वही रिक्रिएट करना है जो वो बातें कर रहे हैं. तो ऐसे 2-2 3-3 के पेयर्स बनेंगे अराउंड द माइक. तो एक बार में डबिंग बूथ्स बड़े भी होते हैं, तो एक बार में आई थिंक एक माइक के आगे ऐसे सेमी सर्कल में हम लोग खड़े होते थे, एंड वी यूज्ड टू टॉक टू ईच अदर रैंडमली, बट अबाउट द कैफे और अबाउट द व्हाटएवर द सिचुएशन इज. तो ऐसे कर कर दैट इज कॉल्ड एम्बियंस डब. और एम्बियंस डब में यू गेट पेड बाय द शिफ्ट, कि भाई 8 बजे से 6 बजे की शिफ्ट है ना, 8 से 6 की शिफ्ट है. उधर स्टूडियो में ही दे विल प्रोवाइड यू विद फूड एंड एवरीथिंग, ऑल दैट हैपेंस. और आप हार्डली यू आर इन फ्रंट ऑफ द माइक, लाइक पूरे दिन में 8-10 घंटों में यू आर इन फ्रंट ऑफ द माइक फॉर हार्डली लाइक 20 मिनट्स. बाकी टाइम पास ही करना है आपको, सोशलाइज करना है, बातें करनी है. सो दैट्स हाउ यू मेक फ्रेंड्स विद द आर्टिस्ट एंड आस्क देम कि वेयर एल्स यू आर वर्किंग एंड देन कैन यू रेफर मी टू दिस प्लेस. और तो ये एम्बियंस डब हो गया, राइट. द नेक्स्ट स्टेप वुड बी इंसिडेंटल्स. इंसिडेंटल्स आर कैरेक्टर्स जो अभी किसी इंसिडेंट के बाद, बिकॉज ऑफ सम इंसिडेंट दे आर देयर, लाइक तुम हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल का सीन है, द प्रोटैगनिस्ट इज टॉकिंग टू अ डॉक्टर, राइट. अब डॉक्टर वुड बी एन इंसिडेंटल कैरेक्टर. तो इंसिडेंटल्स करने के लिए देयर इज अ, आई थिंक ऑलमोस्ट द सेम बजट एज एन एम्बियंस डब, बट मच लेस टाइम. मतलब इंसिडेंटल तुम 15 मिनट में करके यू कैन बी आउट ऑफ द स्टूडियो, राइट. सो दैट वाज द नेक्स्ट स्टेप कि भाई टाइम तो तुम्हारा इतना बच गया, यू नो. अभी फिर हम टाइम की वैल्यू देखने लगे थे. इंसिडेंटल्स करते करते नाउ स्टूडियोज ट्राई टू रिमेम्बर हाउ यू डिड दैट इंसिडेंटल, है ना. तो जैसे मैंने कोई इंसिडेंटल बहुत अच्छे से कर लिया, दे विल बी लाइक कि अच्छा अगली बार कोई डॉक्टर आता है, अगली बार कोई पुलिस वाला आता है, तेरे को बुलाएंगे, कोई डिटेक्टिव आता है तुझे बुलाएंगे. तो मेरे साथ ये बहुत होने लगा. मैं डिटेक्टिव्स कर रहा हूँ, सब कोई भी एफबीआई वाला दिखा रहे हैं, अंशुल माइक पे आ जाओ, ठीक है, ये चल रहा था. तो हाँ, तो इवेंचुअली आई स्टार्टेड लैंडिंग कैरेक्टर्स दैट आर एटलीस्ट सेकेंडरी, जो कि अब डिटेक्टिव्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, ऐसी किसी फील्ड में, बिकॉज द डायरेक्टर्स रिमेम्बर्ड कि भाई ये अच्छा कर लेता है, सो वी कैन ट्रस्ट हिम विथ यू नो बिगर कैरेक्टर्स एंड बिगर स्क्रिप्ट्स एंड यू नो समथिंग विथ रेंज. तो अभी ये मिलने लगे, एंड देन इवेंचुअली अभी बड़े कैरेक्टर्स, फिर लीड्स मिलने लगे. तो लीड इज रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, डेफिनेटली यू हैव टू कैरी द बर्डन ऑफ यू नो द लीड, बट आई एंजॉय इट अ लॉट. बहुत मजे आते हैं लीड करने में, बिकॉज अगेन द होल experience of dubbing, of living that character's journey and everything, it's I think beyond words for me. Got it. पर आपने जो शिफ्ट वाला पीरियड था उसका आपने पे बताया था. इंसिडेंटल्स और अब लीड रोल्स का पे स्ट्रक्चर कैसे होता है? तो बहुत ही इट डिफर्स फ्रॉम प्रोजेक्ट. एवरी प्रोजेक्ट इज डिफरेंट, एवरी स्टूडियो पेज डिफरेंटली फॉर एवरी कैरेक्टर, एवरी लेवल. तो मैंने आपको वो बताया था, एडीआर के टाइम पे मुझे 2 लाइन के 600 रुपए मिल रहे हैं और वो सब हो रहा है. शिफ्ट वाइज वी वुड, अगर 8 घंटे की शिफ्ट है तो अगेन आपसे काम तो बहुत कम करा रहे हैं, बट दे हैव टेकन योर टाइम.
So to compensate fairly, they would pay you like 2-2,500 3,000 ऐसे चलता था. अभी तो और कम हो गया, I've heard. बट ऐसा चलता था. और फिर अगेन अगर आप फिर इंसिडेंटल्स करने लगे, आप एम्बियंस में नहीं जाके आप इंसिडेंटल्स के लिए आ रहे हैं सिर्फ, तो यू विल गेट पेड द सेम 2-3K or 4K, वट एवर दैट लाइन काउंट ऑफ दैट कैरेक्टर इज. अगेन 2-3K और वही आधा घंटा 1 घंटा वट एवर. तो आई थिंक दैट कैरीज फॉरवर्ड टू द साइज ऑफ द कैरेक्टर, कि कितना बड़ा कैरेक्टर है, कितना इंपॉर्टेंट है वो सीरीज के लिए, एंड हाउ मच the studio is willing to pay you for that character. क्योंकि अब फिर it's not about the character also, sometimes it's about the artist, कि भाई ये तो इतना चार्ज करेगा तो मैं इसको इतना कम तो पिच नहीं कर सकता हूँ, तो we'll give him a better character. And that happens, and that happens. And हर स्टूडियो का आर्टिस्ट को गेज करने का भी एक अलग ही पैरामीटर है. पता नहीं कैसे they decide कि भाई ये इतने बजट में मान जाएगा, but it all differs actor to actor and project to project and studio to studio. बट नाउ अपॉर्चुनिटीज मस्ट बी मोर, राइट? इतने सारे ओटीटीज, इतने सारे सीरीज चलते रहते हैं. यस, right? बिल्कुल बिल्कुल. बट अपॉर्चुनिटी किसके लिए? मेरे लिए या वॉइस एक्टर्स के लिए, लाइक? और डेफिनेटली. तो अगेन दैट्स अ वेरी गुड टॉपिक. तो बहुत है तो डेफिनेटली, लाइक एवरी ओटीटी इज ट्राइंग टू गेट देयर कंटेंट इन एज मेनी लैंग्वेजेस एज दे कैन, राइट? करेक्ट. तो बट देयर आर स्मॉलर प्लेटफॉर्म्स जैसे Z5 हो गया, और डिज्नी तो खैर छोटा नहीं बोल सकता मैं, बट अगेन ऐसे ही छोटे प्लेटफॉर्म्स हैं जो, तो इनके बजट्स काफी वो कम होते हैं, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू शेल आउट दैट मच जितना नेटफ्लिक्स या फिर Amazon प्राइम वुड गिव फॉर अ प्रोजेक्ट. तो वही होता है कि सबलेट हो जाते हैं. जैसे तू, तेरा स्टूडियो है, यू आर नॉट एबल टू डू दैट बिकॉज की बजट बहुत कम है, तो तू सबलेट कर देगा, किसी और छोटे स्टूडियो को दे देगा कि भाई तुम करा लो, और तुम्हारे से अगर आर्टिस्ट मान जा रहे हैं इतने में, तो तुम करा दो और हमें दे दो, तो हम डिलीवर कर देंगे, इतना तुम रख लेना, इतना हम रख लेंगे. So that happens a lot, but that I think compromises with the quality overall. नहीं, क्योंकि अब जितना वो उस चीज का भी है कि आप जितना पे करोगे उस हिसाब से कोई भी सर्विस या गुड मिलता है आपको. exactly, तो अगर ज्यादा बजट रहेगा तो आर्टिस्ट तो सारे ही बढ़िया होते हैं यार, कम ऑन, बट दैट आर्टिस्ट would put that much effort to justify that pay. अगर एकदम ही कम पे मिल रहा है ना, तो दे विल बी लाइक कि हाँ चलो कैजुअल एकदम, कि हाँ उठ के आए चलो कर दिया. हाँ, दे वोंट पे अटेंशन टू द स्क्रिप्ट और व्हाटएवर, कि चल रहा है, हाँ चल जाएगा, सिंक हो गया, चलो छापो. इट्स लाइक दैट. एंड आई हैड वन द पे के रिगार्डिंग, जैसे अब आप अपने के प्रोफेशन के पिनिकल पे ऑलमोस्ट नहीं आ ही गए हो, अब आपको और पैरेलली और बड़े प्रोजेक्ट साथ में करने हैं, तो राइट. अब जो पे होता है फॉर लीड एक्टर और जस्ट सपोर्टिंग एक्टर टू द लीड एक्टर या जो भी, तो उसका पे कैसे होता है पर प्रोजेक्ट? उसमें तो क्योंकि आपको पूरे ऑलमोस्ट पूरे सीजन या पूरी मूवी में रहना ही है आपको, ट्रू दैट. हाँ, उसका आप एग्जैक्ट तो मत ही बताओ, रेंज कैसे रहता है ताकि कोई बडिंग वॉइस एक्टर्स है तो उनको पता चले कि ये मेरा गोल होना चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल. तो अगर आपको कोई कहे की सीरीज मिली है, नेटफ्लिक्स की सीरीज मिली है, एंड यू आर द लीड इन इट, तो अभी डिपेंड करेगा स्टूडियो पे हाउ मच दे आर एबल टू शेल आउट फॉर दैट पर्टिकुलर लीड कैरेक्टर. 5K 6K 7K पर एपिसोड. तो अगर वही है कि आप ऐसे ही देखेंगे, पर प्रोजेक्ट ही उसको देखेंगे, बट दे गिव इट टू यू पर एपिसोड. तो ये मैं अभी जिसको अभी अभी लीड मिलना शुरू हुआ है, दे गेट 5K 6K, और so definitely you can ask for more budget from the studios, come on guys. So yeah, whoever is listening, whichever voice artist is listening, कि हमेशा try for better budgets because they have it, they always have it. बस बोलते हैं कि budget नहीं है, they'll obviously want to pay the least amount. exactly, जो कम से कम में करने को ready है उसको they would prefer, right? But that of course compromises with the performance and the overall quality of your work. स्टूडियो का ही काम अफेक्ट होगा ना अगर क्वालिटी अच्छी नहीं दे पा. Of course, I think they understand it, but they try to, sneak past it. जितना हो रहा है उतना तो कर ही लेते हैं. Exactly. एक्चुअली आर्टिस्ट जो भी जिसको पैसा मिल रहा है उसी के ऊपर होता है कि आप यू शुड आस्क फॉर Exactly. व्हाट यू थिंक. हर जॉब में ऐसे ही होता है, कोई भी कंपनी किसी भी एम्प्लॉय को क्यों पैसे देगी? हाँ, उनको भी प्रॉफिट्स करने हैं. कम से कम में कराना है हर किसी को काम, और जल्दी से जल्दी कराना है. ट्रू फॉर ऑल कंपनीज. Yeah.
So I think the payment structure is almost वही कि negotiate अगर करते आता है तुम्हें तो you will bag more. Otherwise फिर आप जितने में हैं satisfied है तो उतना ही रहने वाला है फिर. Studios won't come out of their way and tell you कि अरे नहीं आप इतना चार्ज करो इसके लिए. नहीं नहीं कभी नहीं होने वाला है वो. They'll just tell you कि भाई इस बार थोड़ा बजट बढ़ जाएगा तो then you will be like कि अरे वाह कितना बढ़ेगा तो फिर बताएंगे कि अरे इतना बढ़ा तो it is very depends on your negotiation skills. नेगोशिएशन में तो मम्मी लोगों को लाना पड़ेगा फिर. बिल्कुल हाँ बिल्कुल definitely. Anshul, I think we have covered the main part. We have asked all the questions we had to ask. Now we have a very small rapid fire round, 5 Oh my questions. god. Okay. But nothing nothing like KGO's rapid fire. Oh yeah. Boycott. Yeah. Yeah. So the first question Cancel is, Anshul. No, please don't cancel me, guys. I can't. चलो ठीक है. Cool. अमित को शायद वो हैंग हो गया. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट योर जॉब? The flexible timing. Yeah. One thing you'd like to change about your job? The transparency in budgets. I would, yeah. Then, can AI or robot automation take over the voice acting industry in a few years? Not right now, maybe, but in a few years, do you think? Take over? No, not completely. No. Not completely. मतलब they could go side by side कि थोड़ी सी help हो गई या थोड़ा कुछ better हो गया. लेकिन Help तो अभी हो रही है मेरे ख्याल से. People companies have started using AI for voice overs. अभी corporate VOs या इन सब चीजों में audio books हैं ये सब तो अब AI करने लगा है. But I think to put that human element into it, the performance and everything, AI cannot keep up with it. वो इमोशंस वाला पार्ट जैसे जो रोबोट मूवी में जो दिखाया था कि हाँ इमोशंस वाला पार्ट कभी हाँ नहीं हो पाएगा वो तो नहीं नहीं हो हो पाएगा. पाएगा. जब हाँ तक कोई बिजली का वो आगे नहीं पड़ेगा रोबोट पे तब तक. exactly. And the next question is, what is one missed opportunity that you regret having missed out on? Oh my god, missed opportunity. यार ऐसे ही कुछ होगा. मैं ट्रैवल कर रहा था. मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ. बाय द वे आई गो होम अ लॉट. आई एम फ्रॉम छिंदवाड़ा MP. सो आई गो होम अ लॉट. तो वही 15-20 दिन के लिए तो जाना ही पड़ता है. उससे कम क्या ही जाओगे यार तुम घर. So because of that, I've missed quite a few projects, and oh my god, I won't name them of course, but बहुत ही अच्छे projects थे. And अगर वो होते मेरे portfolio में तो it would have been much better. अभी तो है ही काफी अच्छा I would say, but again, because of traveling, I regret missing a few. But कोई बात नहीं, no regrets. कोई बात तो जाना ही है. नहीं. तो जानी है. Unavoidable चीज है. बिल्कुल. and last question is like, what's an alternate career you would have chosen? Alternate career, कुछ तो film making से related ही होगा definitely. Like I am also an actor. Okay. Yeah, so primarily I'm an actor. अभी dubbing तो I have been doing since I've been doing. But उसके पहले तो मैं मुंबई actor बनने ही आया हूँ. तो definitely I'm still trying to get to land a few roles. Auditions अभी भली कम है, but I would never think of it as a secondary thing. Acting is always primary. और क्योंकि voice acting is such a performing art thing, तो मुझे ये था कि मुझे कुछ भी अलग नहीं करना है कि मैं आउट ऑफ प्रैक्टिस हो जाऊं एक्टिंग से. तो स्क्रीन की जगह बस माइक के सामने सेम चीज करनी है. एग्जैक्टली ताकि एक आर्टिस्ट वाला वो बना रहे मेरा. दैट्स व्हाई आई चोज डबिंग इन द फर्स्ट प्लेस. And yeah, so And dubbing is also quite close. Acting में maybe you just have to body, emotions, face, but True voice that. तो इतना important part ही होता है. ट्रू दैट. बट वही है कि कैमरा जब आता है, जब कैमरा पॉइंट होता है आपके ऊपर, तब देन यू फॉरगेट कि वॉइस कैसे निकल रही है. आपको सिर्फ देखना है कैसे दिख रहे हो. बट अगेन दैट हैपेंस जितना कंफर्ट लेवल है आपका, जितना यू कंफर्टेबल फेसिंग द कैमरा. माइक के सामने तो हो ही गए हैं अब कंफर्टेबल. पहले माइक के सामने भी डर लगता था यार, सीरियसली. अभी न्यू वॉइस एक्टर्स विल रिलेट टू इट कि पहले ऐसा होता था यार मेरी आवाज क्यों नहीं आ रही है. मैं ऐसे जब मैं घर पे बोलता हूँ या वॉशरूम में बोलता हूँ तब तो ऐसी आवाज आती है, माइक के सामने क्यों नहीं निकलती. दैट ऑल हैपेंस बिकॉज ऑफ नर्वसनेस. या Yeah, because when we hear dubs, there is no shaking in voice. ओ या कोई है, एब्सोल्युटली. ये रुक अटक नहीं रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है वैसा. बिल्कुल नहीं. हाँ, I can't imagine how like कितनी मुश्किल होती होगी वो करने में. ऐसा होता है. पता है, लाइक व्हेन माय फ्रेंड्स हियर मी डब, तो वो बोलते ये तेरी वॉइस है, ये दिस इज यू, हाउ कैन दिस बी यू.
कैसे क्या कुछ फिल्टर डाला है, तेरी एनहांस की है वॉइस? बोलता हूँ नहीं भाई कुछ नहीं किया, दिस इज मी, आई जस्ट साउंड डिफरेंट ऑन अ माइक. ओके, मतलब तुम ऐसे साउंड मैं डिफरेंट करूंगा एंड थ्रू स्पीकर्स आई विल साउंड डिफरेंट ऑफ कोर्स. करेक्ट करेक्ट. तुम अगर राइट, पैसे दोगे तो तुमको भी ऐसे सुनने मिलेगा. एग्जैक्टली, सीधी बात. लाइक आई थिंक अभी अभी मैंने माइक कनेक्ट किया था बट वो कनेक्ट हुआ नहीं है ओके. to my iPad. So I tried. So I have this mic. हाँ. It's a professional condenser mic. तो इसमें मैं अपने दोस्तों को भी सुनाता हूँ ना उनकी वॉइस खुद की. हाँ. देख ब्लोन हुए कि मैं इतना अच्छा साउंड करता हूँ. Usually what happens is कि आप खुद की वॉइस जब वीडियो में सुनते हो you'll be like क्या अजीब चाहिए अजीब अजीब सा लगता आप रे. हाँ. But मेरे साथ ये कभी नहीं हुआ. I have always No, loved we my can. voice in videos. I think immediately आप जब आए आपने बात करना शुरू किया तो we knew कि आप क्यों हो वॉइस एक्टर. Very clear था ये. But I'd like to tell you, मेरी ऐसी नहीं थी voice. I've improved it, I've polished it over the years. Otherwise पहले भी मेरी भी voice एकदम shrill सी और पता नहीं अजीब थी थोड़ी. But I've improved it a lot and I've learned how to speak properly. Yeah. I used to stammer earlier. अभी भी कभी-कभी हो जाता है, but हाँ. again वही है कि प्रोफेशन है तो तुम्हें थोड़ा तो दिखाना ही पड़ेगा यार. Come on, हाँ. that you. नहीं अभी at any point ऐसा नहीं लगा कि कन्वर्सेशन वॉइस मतलब परफेक्ट ही है. वही हम लोग क्या सोच, मैं तो इमीडिएटली आते ही सोचा कि ओके Right. why be a voice actor. I think we are done with the rapid fire also, Anshul. Thank you so Thank you so much. much. Very very Thank It was interesting very very stories. interesting. Thank कभी you for कभी watching the podcast till the end. If you have any questions or doubts for the guest, please let us know in the comments. And if you think कि कोई question बहुत important है, do let us know ताकि we can focus more on that aspect next time. और आप लोग थैंक यू मत कहिए, इंस्टेंट 3 लोगों से शेयर करिए और उन तीनों से कहना कि और 3 लोगों से शेयर करें. दुनिया बदल जाएगी.